کورونا کی تیسری لہر برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ 9 اپریل سے پاکستان سے برطانیہ آنے والوں کو 10 دن ہوٹل قرنطینہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے علاوہ فلپائن، کینیا اور بنگلہ دیش کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان کو بڑے معاہدے کی پیشکش۔ سعودی عرب گرین انیشیٹو میں پاکستان کو شراکت دار بنانے کا خواہش مند۔ سعودی سفیر کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم سے ملاقات میں ماحولیات سے متعلق 4 اہم شعبوں میں شراکت داری کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ثابت ہو گیا عمران خان اور اس کی جعلی حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، عمران خان اور ان کی حکومت کو ووٹ چوری کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ چینی مافیا کے خلاف جاری تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ چینی مافیا نے ملائیشیا، دبئی، برطانیہ اور یورپ میں اربوں روپے کے بے نامی جائیدادیں بنائی۔ FIA نے جائیدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ملکوں سے رابطے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کورونا ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہوگی۔ پاکستان کی مقامی دوا ساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ 7 شریف میں درگاہ شہباز قلندر کا گیٹ توڑنے کے کیس میں پولیس نے 400 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایک روز پہلے مشتعل زائرین نے زبردستی درگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ 7 شریف میں کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر حضرت لال شہباز قلندر کا مزار زائرین کے لیے بند ہے۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز اپنے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے ادارے دوسروں کے حوالے کر رہی ہے۔ مرکزی بینک IMF کی مرضی سے چلا تو یہ ملکی خود مختاری پر حملہ ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا جیب کباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موجودہ حکومت معاشی بحران کی اصل وجہ ہے۔ PTI MF ڈیل کی وجہ سے تاریخی بے روزگاری ہے۔ گزشتہ 3 سال میں 2 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے لیکن پالیسی ایک ہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت ملک کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے حوالے کر رہی ہے۔ IMF کی مرضی سے اسٹیٹ بینک کا چلنا ملکی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ سعودی عرب کی پاکستان کو بڑے معاہدے کی پیشکش۔ سعودی عرب گرین انیشیٹو میں پاکستان کو شراکت دار بنانے کا خواہش مند۔ سعودی سفیر کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم سے ملاقات میں ماحولیات سے متعلق 4 اہم شعبوں میں شراکت داری کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ سعودی عرب گرین انیشیٹو میں پاکستان کو شراکت دار بنانا چاہتا ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی اب سعودی عرب میں بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے معاہدہ کیا جائے گا، جبکہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں بھی تعاون ہوگا۔ سعودی عرب نے بلین ٹری سونامی اور اولیو آئل ٹری سونامی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنیکل وفود پر مشتمل اہم رابطے جلد شروع ہوں گے۔ کورونا کی نئی لہر کے باعث برطانیہ نے پاکستان سمیت 4 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ نئی پالیسی کا اطلاق 9 اپریل سے ہوگا۔ کورونا وبا کے جان لیوا حملوں میں تیزی آ گئی تو برطانیہ نے بھی اپنی حکمت عملی بدل دی۔ پاکستان سمیت 4 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ I want to give you an update about UK-Pakistan travel. As you know, the UK government has been keeping its border measures under close review because of COVID-19. Today, it is announced that Pakistan has been added to the UK's red list of travel banned countries. پاکستان کے علاوہ فلپائن، کینیا اور بنگلہ دیش بھی ریڈ لسٹ میں شامل۔ Red listing means that only UK and Irish nationals and those with residency rights in the UK will be allowed to travel to the UK if they've been in Pakistan in the 10 days before they arrive. They will have to pay to stay in mandatory hotel quarantine for 10 days after they arrive. These measures will come into effect in a week's time at 4 o'clock in the morning on Friday, April the 9th. نئی پالیسی کے مطابق 9 اپریل سے برطانیہ میں داخل ہونے والے تمام مسافروں کو 10 روز کے لیے قرنطینہ میں رہنا پڑے گا۔
इतलाक इन मुसाफिरों पर भी होगा जो ट्रांजिट फ्लाइट पर इन मुमालिक में जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत पकड़ती जा रही है, जिसमें बरतानवी तर्ज का वायरस तेजी से फैल रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। नए एसओपीज के तहत सिर्फ उन पाकिस्तानियों को ही बरतानिया में दाखिले की इजाजत होगी जिनका कोरोना टेस्ट मनफी होगा, और इन पाकिस्तानियों को बरतानिया में आकर 10 दिन के लिए हर सूरत में क्वारंटीना में रहना पड़ेगा। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद बरतानिया जाने वालों को होटल में 10 दिन के लिए क्वारंटीना में रहना पड़ेगा और 1750 पाउंड भी अदा करने होंगे। इस दौरान अगर कोई गैर कानूनी तौर पर भागने की कोशिश करेगा तो उससे 10,000 पाउंड जुर्माना होगा। NA 249 लीगी उम्मीदवार को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्लीन चिट मिल गई। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक अपील को मुस्तरद कर दिया गया। दरखास्त PTI उम्मीदवार की जानिब से दायर की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के हसनैन चौहान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मिफ्ता इस्माइल ने खलफनामे में गाड़ी और सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया, लिहाजा NA 249 ज़िमनी इंतखाबात के लिए मिफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिफ्ता इस्माइल की नाअहली से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। पाकिस्तान की मकामी दवासाज कंपनी का वैक्सीन की तैयारी के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया है। मकामी दवासाज कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल में कामयाबी के नतीजे ज़बरदस्त रहे, जबकि तीसरे मरहले में 20,000 से ज़्यादा अफराद पर वैक्सीन का असर और इसकी अफादियत को जांचा जाएगा। वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले में कई मुल्कों को शामिल किया गया है। कंपनी के मुताबिक उसने लेविजुमैब हार्म के साथ कोरोना वैक्सीन की लाइसेंसिंग और सप्लाई का मुआहिदा किया है, जिसके तहत मकामी दवासाज कंपनी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए NA 75 में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा है। इस पर मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार चौधरी खादिम अली से। जी सर, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बरकरार रखा है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सानिया। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके इसरात जो है वो मुल्क के ऊपर बहुत संगीन होगा। उसकी वजह के तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पूरे हलके के जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाए, और जिस बिना के ऊपर दिया है कि लड़ाई झगड़ा फायरिंग या 2-4 जो है ये पोलिंग एजेंटों का ये जो प्रिजाइडिंग अफसर है उनके गायब होने की वजह से अगर आइंदा जनरल इलेक्शन में इसी मिसाल को फॉलो करेंगे लोग तो हर हल्के में 10-20 पोलिंग जो है वो एरिया के ऊपर फायरिंग का होना, झगड़े का होना एक मामूल है पाकिस्तान में। और अगर कोई कैंडिडेट ये समझता होगा कि मैं हार रहा हूँ, वो 2-4-10 पोलिंग एजेंटों को अगर इसी तरीके से चंद घंटों के लिए कहीं गायब कर देता है तो क्या ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मल हो सकेगा कि वो पूरे मुल्क के इलेक्शनों को कलअदम करार दिया जाए? एक हल्के में अगर झगड़े हो जाते हैं, कोई पोलिंग एजेंट या प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके असरात आइंदा आने वाले इलेक्शन को बहुत बुरे पड़ेंगे। और दूसरी बात जो इस इलेक्शन की बात है, सुप्रीम कोर्ट से जो दरख्वास्त थी, जो अवाम पाकिस्तान की तवक्कुआत थी, वो तो ये थी कि सबसे पहले इसकी इंक्वायरी कंप्लीट की जाए और जो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए हैं, जिन लोगों ने गायब किया है, कहाँ वो गए हैं, उन सब को कटेरे में खड़ा करके उनको सख्त से सख्त जो है वो सजाएं दी जाती, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में
फिर किसी की जान ना चली जाए, फिर उसी तरीके की फायरिंग ना हो। अगर वही लोग पूरे आज़ाद फिर रहे हैं, गैप करने वाले भी आज़ाद है, उनको किसी ने पूछा नहीं, उनको किसी ने जेलों में बंद नहीं किया, वो उसी तरीके से जो है वो सड़कों रोडों गांव देहातों में अगर वो धनधनाते फिर रहे हैं, तो मुझे बताया कि किस तरीके से ये अगला इलेक्शन जो है ना वो शफाफ करवा पाएंगे। ये बयानात हैं या फैसलों के साथ तो इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। इलेक्शन शफाफ कराने का एक ही हल था कि जितने भी वो उसमें जुर्म में शामिल थे, प्रिजाइडिंग अफसर जो गायब हुए, इसके कहने पे गायब हुए, इसके घर में के इतनी देर कहाँ जाकर बैठे रहे, उनको ला के चौकों में लटकाया जाता ताकि अंदर पूरा मुल्क का इलेक्शन जो है ना वो आपका साफ और शफाफ होता। अभी किसने उनको अगवा किया था, कहाँ गायब हुए थे, इतना बड़ा स्कैंडल है। उस कैडर की तरफ आप जाते नहीं हो, जब बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे तो उसका इलाज जो है ना वो बड़ा जो है ना वो सही नहीं होगा। सर, तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो तो उनसे ऑपोजिशन से कहते हैं कि इस्लाहात की जाए इलेक्शन में, लेकिन पीटीआई नहीं बैठ रही पार्लियामेंट में इस मौक़िफ़ पे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि नून लीग या पीपल पार्टी जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, जितना भी एक वो करप्शन क्लब के मेंबरान जो है वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, उनको वही पुराना निजाम जो है ना वही सूट करता है उनको। वो उस निजाम के ऊपर तो उन्होंने अपने अंपायर पार खड़े किए हुए हैं। अरब खरब रुपया जो है ना मुल्क का लूट के सरमाया उन्होंने अपने महल्लात जो है वो बाहर बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े अंपायर बनाए हुए हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि वो इस्लाहात हो? कत्तन, क्योंकि ये नून लीग और पीपल पार्टी को वही पुराना वो सीधा निजाम जो है वो सूट करता है। वो नहीं चाहेंगे कि इस निजाम में जो है वो तब्दीली आए या कोई बेहतर जो है ना इसके ऊपर कानून साजी हो, वो कतई नहीं चाहेंगे। और मेरा ख्याल है इमरान खान को इन बातों से भी निकलना चाहिए कि उसको पता है कि पार्लियामेंट में उसके पास वादे दो तिहाई अक्सरियत नहीं है। ये जो लेक्चर देने, ये वादो तबलीग करनी, इसको छोड़े, इसका कोई फायदा नहीं। ये अवाम जो है ये इससे जो है वो सबक थोड़ी देती है, ये चुकते बनाते हैं लोग। यहाँ तो एक डेथ रिकॉर्ड की जरूरत है इस मुल्क में। ये जितने हराम खोर हैं ये क्या इन इलेक्शन से सही होंगे? या जिस तरीके से ये फैसले, मुझे बताए कि जो करप्ट है, जो मुल्क को लूट के खा गए हैं, वो सारे जेलों से बाहर फिर रहे हैं, क्या ये इलेक्शन से ठीक हो जाएंगे? या इनको जमानतें दे दे के बाहर फिराएंगे तो क्या ये तब ठीक हो जाएंगे? तो ये निजाम जो है ना ये बातों से, इन चक्रों से निकलना पड़ेगा इमरान खान को। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये कार्डिनल सख्त निकाले और दहशत दुनिया की मिसालें देखें। सऊदी अरेबिया ने देखो अपनी रिकवरी कैसे की, आपने शहजादों को बुलाया, बंद किया और उनको सुबह लटकाते थे 75 को नाश्ते के बाद और 75 को शाम के खाने के बाद, और माल वापस आया उनका। ये इलेक्शनों से माल वापस आए। ये जो जिस तरीके से यहाँ आजादी है, ये मुल्क में तो हम देखते हैं ना कि अदलिया आपकी जात है, इलेक्शन कमीशन आपका जात है, नैब आपकी जात है। इसीलिए तो तमाम चोर, डाकू, लटेरे, कातल, दहशतगर्द जो है वो जात है। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी हादिम अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इमरान खान और उनकी हुकूमत को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ फ्री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा और वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश। चीनी माफिया के खिलाफ जारी तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीनी माफिया ने मलेशिया, दुबई, बरतानिया और यूरोप में अरबों रुपए के बेनामी जायदादें बनाई हैं। सट्टे और चीनी के नाजायज़ मुनाफे से ख्वालाहंडी के जरिए बैरून मुल्क बेनामी जायदादें बनाने का इंकशाफ हुआ है। चीनी माफिया ने मलेशिया, दुबई, बरतानिया और यूरोप में अरबों रुपए की बेनामी जायदादें बनाई। FIA ने जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुल्कों से राब्ते करने का फैसला कर लिया है। वजारत खारजा के जरिए गैर मुल्की सफारत खानों को सट्टा माफिया के सरगर्म अफराद के नाम और तफसील दी जाएगी।
मियांवाली थाना मुसाखेल के इलाके डरियावाला में बीवी के हाथों शोहर का कत्ल। बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक मुलजिमा ने अपने शोहर फतेह खान को सर में फायर मारकर कत्ल किया। डेड बॉडी को DHQ अस्पताल मियांवाली में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मियांवाली से नुमाइंदा मोहम्मद तारिक से। जी तारिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली के इलाका वांडा डेडियावाला में बीवी ने शोहर को सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर लड़की ने अपने शोहर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वह शादी से पहले उसको ब्लैकमेल करता था। शादी से पहले लड़की के शोहर ने उसके पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। बीवी ने अपने शोहर से इज्जत सोशल मीडिया पर उछालने पर उससे इंतकाम लेने के लिए उससे शादी की थी और आज मौका पाते सर पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया तारिक, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। 7 शरीफ में कोरोना वायरस के बायस बंद लाल शहबाज कलंदर मज़ार का मरकजी गेट ज़ायरीन ने तोड़ दिया। सिक्योरिटी पॉइंट से मज़ार के अंदर दाखिल होने की कोशिश, पथराव, 5 पुलिस एहलकार जख्मी, 5 मोटरसाइकिलें नजरे आतिश। पुलिस ने 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहवन शरीफ में कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार ज़ायरीन के लिए बंद है। पाबंदियों के बावजूद पंजाब समेत मुल्क भर से ज़ायरीन सहवन शरीफ पहुंचे। गुज़िश्ता रोज मुश्तइल ज़ायरीन ने मज़ार का मरकजी गेट तोड़कर ज़बरदस्ती मज़ार में दाखिल होने की कोशिश की। इस वाक़े का सहवन शरीफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरगाह के सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद नजफ शाह की मदीयत में थाना सहवन में 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सरकार के काम में मुदाखलत, ड्यूटी में खलल, तोड़ फोड़, हंगामा आराई, आग लगाने और पथराव करने के दफात शामिल की गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी तादाद में नफरी सहवन शरीफ में मौजूद है। दरगाह कलंदर लाल शहबाज ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। चुनियोट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात सवालिया निशान बन गए। महकमा सेहत की गफलत, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मुतल्लिका अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। चिनियोट DHQ अस्पताल में नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से कोरोना तेजी से फैलने का शदीद खतरा। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की मुजिमाना गफलत के बायस अस्पताल कोरोना फैलाने की वजह बनकर रह गया। नाकिस हिकमत अमली के बायस पर्ची काउंटर के गिर्द आवाम का जम्मे गफीर। रश की वजह से लोगों को पर्ची के हुसूल में मुश्किलात का सामना, बड़ी तादाद में खातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल। थाना सदर पिंडी भटिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद की है और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर मोहम्मद नजीर से 9 किलो हेरोइन बरामद की गई। मुरीद के DPO शेखपुरा की हिदायत पर DSP इफ्तिखार ने थाना सदर मुरीद के SHO समेत बारी नफरी के हमरा नारोवार रोड और डेरा करार वाला में सर्च ऑपरेशन करते हुए इसरार डकैत गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुरीद के पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पंजाब के मुतादिद थानों के रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जबकि मुलजिम शहजाद उर्फ मिठू अरसा 4 साल से डकैती की वारदातों में मतलूब था। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि कामयाब कार्रवाई पर DPO गुलाम मुबशर मकीन ने DSP मुरीद के और SHO थाना सदर मुरीद के को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है।
समंदरी जाली पुलिस का रूप धारने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी समंदरी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में गुज़िश्ता रोज जुल्फिकार नामी शहरी को निजी बैंक से रकम निकलवाते हुए लूटा गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि सिविल वर्दी में जाली पुलिस वाले ने 3 नामालूम साथियों के हमरा मुझसे रकम हथियाई। मुलजिमान रकम हथियाने के बाद फरार हो गए। पुलिस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके मेरी रकम वापस दिलाए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी वजह अवाम की बेएहतियाती है, जबकि दूसरी जानिब बेएहतियाती की वजह से नौशहरा के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल चुका है, जिसमें सबसे बड़ी वजह अवाम की बेहतियाती है। इस वक्त नौशहरा में फ़ाल केसेस की तादाद 800 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 610 से ज़ायद अफराद जिनके कोरोना टेस्ट लिए गए हैं, इनके टेस्ट रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। जबकि दूसरी जानिब नौशहरा के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के बस स्टैंड पर, जहाँ पर देखा जा सकता है कि मुसाफिर मास्क के बगैर सफ़र कर रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मुसाफिरों को हर मुमकिन तौर पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी किए गए हैं, मगर इसके बावजूद मुसाफिर मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टरों को बंद करके हवालात के पीछे हम धकेल देंगे। जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे और इनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसीकी का एक और अहम बाब बंद हो गया। मारूफ गुलकार शौकत अली लाहौर में इंतकाल कर गए। शौकत अली लाहौर CMH में ज़ेरे इलाज थे। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। वो आज इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1960 की दहाई में किया। वो लोग मौसीकी में अपना एक मकाम रखते थे। गुजरात में पैदा होने वाले शौकत अली को शोहरत रेडियो और TV से मिली। ताहम 1990 में उनकी खिदमात के सिले में उनको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिए। देखते रहिए चैनल 51।